Hello everyone. In this video, we'll be solving rectification of errors question which came in all the revision test papers from 2018 to 2023. But before that, I just want to give you a basic structure why rectification is required and at what time we have to pass the rectifying entry. Okay. Now understand, the journey of the entry is as first you record the entry in journal. Then we post the entry in ledger. Then we prepare the trial balance. Then we prepare the final accounts. ये पूरी एक जर्नी है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. अच्छा, अगर मैं आप लोग को बोलूं वेयर कैन द एरर अकर, सो यू विल टेल सर आफ्टर जर्नल एंट्री लेजर यू आर पोस्टिंग इनटू द लेजर, सो यू कैन से while recording the journal entry there can be an error, while posting the journal entry there can be the error. Okay, now we will write three cases as such. Either I have found out the error, see error occurred in recording the entry or error can occur in posting the entry. Okay, what can happen after posting also, if I find out at this level means before preparing the trial balance, if I find out that there is some error in recording the entries. So one case is before preparing trial balance, if I find out that there is some error, or after preparing trial balance but before final accounts, after preparing trial balance but before preparing final accounts. Okay, now you can say sir, what if we find out after preparing final accounts there is some error? So this is our third case, after preparing फाइनल अकाउंट्स. तो भाई गलती कहाँ कहाँ पर हो सकती है? गलती हो सकती है रिकॉर्ड करते वक्त, गलती हो सकती है पोस्ट करते वक्त. गलती कहाँ पर मिलेगी हमें? या तो ट्रायल बैलेंस पे लिखने से पहले मिल जाएगी, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हमें पता लग जाएगा कि हमने गलती की है, या फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स वी माइट फाइंड दैट देयर वाज सम एरर वी मेड व्हाइल रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग द जर्नल एंट्री. ओके, सो for all this part we have to pass the rectifying entry. How? Let's check. See, this is our Genius table prepared so that it will become very easy to tackle all the questions. Okay, check. If there is any error in recording the entry or in posting the entry, where can be the error? Before preparation of trial balance, after trial balance but before final accounts, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. भाई सीधी सी बात है. देखो अब रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करेंगे? अगर रिकॉर्ड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आया है और हम लोग को पता चल गया वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन यू कैन पास द रेक्टिफाइड एंट्री. ओके, इफ recording the entry has been, if there has been any error while recording the entry and we find it out after preparing trial balance but before final accounts, again you can pass the rectifying entry. Then sir, what's the difference between two? The difference is before preparing the trial balance, right, suspense accounts will never be used. Remember this, you cannot use suspense account. Okay, after preparation of trial balance you can use the suspense account. Remember this. Now this is the rectified entry, but if there has been some error in recording the entry and we find it out after preparing final accounts, matlab trading, P&L, balance sheet, everything has been prepared, then we find out, oh, we have done some mistake. Now how to correct it? You will pass the rectified entry but use P&L adjustment account for nominal accounts. What are the nominal accounts? All the income accounts and expenses accounts are nominal accounts. ठीक है. For example, I will say परचेज अकाउंट इज ऑल्सो योर एक्सपेंस अकाउंट. भाई हमने गुड्स परचेज किए तो वो एक्सपेंस ही है. सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो आर इनकम अकाउंट. रिमेंबर दिस. इफ इन द रेक्टिफाइड एंट्री any income or expenses appearing, so you will replace it with the P&L adjustment account. Say for example, your rectified entry is purchase account debit to Ram. What will you write if the mistake was found after preparing final accounts? You will write
P&L adjustment account debit to Ram. Why? Because purchase is my expense account, expense is nominal account, and you have to use P&L account for nominal accounts. Remember, परचेज अकाउंट देखो चेंज हो जाएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में. बात समझ में आ गई? हाँ सर, हम लोग तो बचपन से ही होशियार है, आप भी हमें बता रहे हो, हम तो ज्ञानी परमात्मा है. चलो नालायकों आगे चलो. इफ देर इज एनी एरर इन पोस्टिंग द एंट्री, भाई पोस्टिंग करते वक्त गलती मिल गई, पोस्टिंग में गलती है यानी कि लेजर अकाउंट में गलती है, इसका मतलब जर्नल एंट्री करेक्टली पास कर दी, पोस्टिंग में प्रॉब्लम किया. ठीक है, वी फाइंड इट आउट बिफोर प्रिपरेशन, सो नो जर्नल एंट्री. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. कोई रेक्टिफाइड एंट्री पास ही नहीं करना है, you just have to write a statement. I will tell you when the question will come how to write that statement. Okay, now after that, if there is an error in posting the entry and we find it out after preparing trial balance but before final accounts, again the rectified entry, you can use the suspense account here. But if posting is the problem and after preparing final accounts you find it out, or after closing the books of accounts, they can use this statement also, still rectified entry can be written. So okay, easy. Now we'll start with the question. Our first revision test paper is May 2018 and the first question is as such. Check. The following errors were committed by the accountant of Geeta Dye Chemical. First is credit sale of 400 rupees to Trivedi and Company was posted. Posted मतलब प्रॉब्लम कहाँ आया? जर्नल बुक में नहीं, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर प्रॉब्लम आया. सो क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड को was posted to the credit of their account. इसका क्या मतलब है भाई? Credit of their account means what? See, the journal entry for sale should be what? Trivedi account debit to sales. Simple. Trivedi account debit to sales. So when you are preparing Trivedi account, you should have written to sales 400, correct? But what have they done? See, they are saying we posted it to the credit of their account. Credit of their account means this is the credit side. They have written 400 this side. This is the problem they have done. They had to write 400 here, they have written here. So how will we rectify this? That we have to tell. And they have given us 3 cases. How would you rectify the errors? Assuming that they were detected before trial balance, they were detected after preparation of trial balance, but before preparing final accounts. Third is they were detected after preparing final accounts. These 3 we have learnt already in our Genius table. Okay, now so we will first write the answer for the first thing. Check. तो भाई क्रेडिट सेल है त्रिवेदी कंपनी की, पोस्टेड टू द क्रेडिट. सो दिस इज आर पोस्टेड, posting the entry, and we have learnt if we find it out before preparing the trial balance, no journal entry will come, only a statement you have to write. How will you write the statement? Check. First I will write here no entry, then this is we are talking about only first point. Okay, and I will write here debit Trivedi account with 800. बात समझ में आ गई, बस इतना ही लिखना है. दिस इज आर स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड. अंडरस्टूड? नाउ इफ आई हैव फाउंड आउट दैट दे आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, देन हाउ विल वी रेक्टिफाई दिस? वी विल राइट द एंट्री. वी हैव टू डेबिट द त्रिवेदी, सो यू विल राइट हियर त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800 रुपीज. बट सर क्रेडिट क्या करेंगे? देखो, जब पोस्टिंग में गलती आई है सिर्फ त्रिवेदी के पास गलती आई है. इन सेल्स अकाउंट दे हैव सेड नथिंग. इट मीन्स सेल्स अकाउंट में वी हैव रिटन बाय त्रिवेदी करेक्टली. द प्रॉब्लम इज ओनली विद द त्रिवेदी अकाउंट. सो त्रिवेदी अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट कितना है? 800. बात समझ में आ गई? चलो भाई, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इसमें भी सेम ही रहेगा. त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800 टू सस्पेंस अकाउंट 800. अरे सरल. अच्छा भाई, उसके बाद क्या है दूसरा? परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड को पास्ट. पास्ट मीन्स जर्नल एंट्री में ही प्रॉब्लम आएगी. देयर इज अ सम प्रॉब्लम व्हाइल रिकॉर्डिंग द एंट्री इटसेल्फ. परचेज फ्रॉम मंत्री
passed through sales day book as 240. Oh my god, there are two errors. First is हमने परचेज किया मंथली एंड को से, बट हमने वो एंट्री कहाँ लिख दी? वी हैव रिटन दैट एंट्री इन सेल्स डे बुक. We were supposed to write it in purchase day book. We wrote it in sales day book. This is the first wrong thing we did. Second is we purchased of 420 and we have written in sales as 240. तो भाई दो गलतियां आपने कर दी, बराबर. तो अगर मैं आप लोग को बोलूं what is the wrong entry in this, so you will say wrong entry was we have written by mistake in sales day book. तो हम लोगों ने क्या लिखा होगा? हम लोगों ने लिखा होगा मंथली एंड को डेबिट टू सेल्स 240 240. ठीक है. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? भैया हम लोग को तो याद नहीं है करेक्ट एंट्री. अरे नालायक. वी हैव परचेज 420 फ्रॉम मंथली, सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू मंथली एंड को. कितना? 420 420. वाह, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो गए. भैया हम तो एक्सपर्ट ही पैदा हुए थे, आप ही हमें नालायक समझते हो. अच्छा चलो, अब मैं नालायक नहीं कहूँगा, बस चलो भाई. इफ़ वी फाइंड इट आउट बिफोर ट्रायल बैलेंस, हाउ विल यू रेक्टिफाई दिस? दिस इज योर रॉन्ग एंट्री एंड सी फ्रॉम दिस रॉन्ग एंट्री वी हैव टू रीच हियर इन द करेक्ट एंट्री. ओके, तो आप लोग रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करोगे? देखो, पहले तो इसको नलीफाई करना होगा. मंथली टू सेल्स, you have to correct it by how will you write it? Sales to monthly. So I will write here sales account debit 240 to monthly 240. ठीक है. Now I have to write correct entry. देखो, this what I have written, I have just corrected the wrong entry. भाई जो गलती से लिखा था उसका उल्टा कर दिया. I wrote monthly to sales here. I wrote monthly to sales here. What I have done here? Sales to monthly. तो गलती तो ठीक हो गई. अब करेक्ट एंट्री पास करनी है, तो करेक्ट एंट्री में क्या लिखोगे? परचेज टू मंथली, सो परचेज अकाउंट डेबिट कितना है? 420 टू मंथली. ओ माई गॉड, मंथली इज ऑलरेडी देयर. सो कैन वी ऐड 420 डायरेक्टली इन दिस? एब्सोल्युटली यू कैन ऐड 420. सो 420 प्लस 240 विल बी हाउ मच? 660. दिस इज योर जर्नल एंट्री टू बी पास्ड. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑल्सो द जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम ओनली हियर ऑल्सो. सो आई विल जस्ट कॉपी इट. यू कैन नॉट डू दिस इन एग्जाम. ओके, चलो. आफ्टर दिस, वॉट इफ दे वर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, देन वॉट विल यू डू? ओ माई गॉड सर, we know that you have taught us. Obviously I have taught you this. What will you do? You tell me. I have told you already. If the problem is with, see, the problem is with passing the entry. Passing the entry यानी कि भाई ये रहा recording the entry is what? Passing the entry is correct. Recording the entry, passing the entry, one and the same thing only. इसमें भी after preparation of final accounts, what I told you? Use P&L adjustment account for nominal accounts. So do we have nominal accounts there? Yes sir, we have nominal accounts. Okay, so sales and purchase will be replaced by P&L adjustment. Beautiful. P&L adjustment account कितना? 660 to monthly and co 660. बात समझ में आ गई? इजी. देखो, अगर टेबल है ना, जो जीनियस टेबल जो प्रिपेयर की गई है, अगर ये अच्छे से सीख लोगे ना तो पूरा रेक्टिफिकेशन आराम से निकल जाएगा. ठीक है. चलो, May 2018 डन. आफ्टर दैट November 2018. चलो भाई चलो, एकदम इजी सी बात है. क्लासीफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर द 3 कैटेगरीज: एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन एंड प्रिंसिपल. बोलो भाई, बोलो. सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. ओ माई गॉड, you had to credit furniture account, but by mistake you have credited in sales account. Which error is it? This is, you will call as error of principal. Why? Because sales account is, first thing is sales account है income account, furniture account था asset account. बात समझ में आई? asset account को credit करना था. The entry was supposed to be credit furniture. See, sale of furniture, what will you write? Cash to furniture, but you have credited sales. What you have written? Cash to सेल्स. अरे अकाउंट ही चेंज कर दिया. दिस इज द एरर ऑफ
प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट दैट दिस इज योर कैपिटल रेवेन्यू, ओके, एंड दिस इज योर कैपिटल आइटम, दिस इज योर रेवेन्यू आइटम। बात समझ में आई? वी हैव डिस्कस्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन वन ऑफ आवर सीरीज, यू कैन चेक इट। चलो भाई, ये हो गया आपका कौन सा एरर? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। परचेज वर्थ 4500 फ्रॉम एम, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इज द बेस्ट, ओके, आई लव दिस। वेन एवर दे आर सेइंग नॉट रिकॉर्डेड, एरर ऑफ ओमिशन, सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं। क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, ओ माई गॉड, सी क्रेडिट सेल रॉन्गली पास मीन सेल की थी, गलती से परचेज बुक में लिख दी, तो फिर क्या करोगे? दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। क्यों भाई? क्रेडिट सेल गलती से परचेज बुक में लिख दी। सी अगर आपने गलती से परचेज बुक में भी लिखा है ना, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, परचेज और सेल दोनों ही नॉमिनल अकाउंट ही थे, ठीक है, इसलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं आएगा। फर्स्ट में एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों आएगा? क्योंकि सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट था, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट था। बात समझ में आई? देखो दोनों में फर्क है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट ना दोनों नॉमिनल थे, इसलिए एरर ऑफ कमीशन। सेल्स अकाउंट यहाँ पर नॉमिनल था, बट फर्नीचर की सेल तो फर्नीचर लिखना था, वो आपका रियल अकाउंट था, इसलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल पे जहाँ पर बात आई तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? बेसिक्स को टच मत करो, बेसिक्स को टच करोगे तो प्रिंसिपल का एरर माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या, सेल और परचेज दोनों एक ही फैमिली के हैं, दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर बट ओमिटेड। अरे भाई, जब आपने ओमिटेड बोल ही दिया तो एरर ऑफ ओमिशन, सिंपल। You will be very lucky if this kind of rectification error question they are asking, okay, just to classify. Goods worth rupees 5000 purchased on credit, okay, we have purchased on credit from Ram, recorded in the purchase book as 500. Oh my god, only the amount difference is there. If there is only amount difference, it is error of commission only. खाली amount का ही तो फर्क है ना, कोई account तो गलत नहीं लिखा, तो error of commission. So we will write here error of कमीशन। बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अरे आगे बढ़े क्या? हाँ सर, आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ, ठीक है बच्चों, चलो आगे चलो। मई 2019, चलो भाई चलो, क्या बोल रहा है मई 2019? चलो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? भाई पहली बात है, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, वी कैन यूज अ सस्पेंस अकाउंट, दे हैव क्लियरली टोल्ड अस। नाउ goods of the value 10,000 returned by Mr. Sharma, okay, were entered in the sales day book. OMG, if it was returned by Mr. Sharma, we had to record it in sales return book, not in the sales day book, okay, and posted therefrom to the credit of his account. Oh my god, now tell me, it was posted to the credit of his account. Were we supposed to post in the credit of his account? See, whenever you are getting sales return, first remember, you should clearly write, or you should remember that what is the correct entry in this case. So correct entry is sales return account debit to Sharma, correct? So when you will prepare Sharma's account, what will you write? You will write here by sales return, whatever amount is there. They are saying posted therefrom to the credit of his account. So this only was the correct thing, no? And that only they have done, it was posted therefrom to the credit of his account. It means that is correct only. It means posting is correct only, recorded is wrong. Where have they recorded? Goods of the value of 10,000 returned by Mr. Sharma were entered in sales day book, यानी कि हम लोगों ने सेल्स में लिख दिया। अगर भाई हमने गलती से सेल्स में लिख दिया 10,000, तो सेल्स को ठीक कर दो। सेल्स को ठीक कैसे करोगे? When we have written in the sales day book, obviously what entry we would have written? We would have written Sharma account debit to sales. तो सेल्स को ठीक करना है आपको, तो क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट। हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट। अब सही एंट्री क्या थी? सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, तो लिखो सेल्स रिटर्न
अकाउंट डेबिट, सेल्स डेबिट करना था 10,000 से, सेल्स रिटर्न हमारा सही था 10,000 से। भाई क्या शर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम आया क्या? शर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। सबसे पहली बात तो ये थी, क्योंकि उनके अकाउंट में तो क्रेडिट करना था एंड दे आर सेइंग इट वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद शर्मा। सो व्हाट विल यू क्रेडिट हियर? यू विल राइट हियर टू सस्पेंस अकाउंट। अरे बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं? भाई शर्मा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था तो टू सस्पेंस अकाउंट। वो लोग काफी बार कंफ्यूज कर देंगे। देखो, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, अरे वी वर सपोज टू पोस्ट इन क्रेडिट साइड ओनली हिज अकाउंट, सेल्स रिटर्न था तो बाय सेल्स रिटर्न ही लिखोगे। बात समझ में आई? अगर बेसिक जर्नल एंट्री वगैरह ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो डरना मत, आप लोग जर्नल एंड लेजर की सीरीज़ में डाल चुका हूँ, सीरीज़ नंबर 2, यू कैन गो एंड प्लीज़ मेक योर बेस स्ट्रांग। ओके, फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन पे भी 2 वीडियोस डाले हैं जहाँ पे मैं बेसिक्स की बात करता हूँ रेक्टिफिकेशन की। ओके, प्लीज़ गो एंड चेक। अच्छा, यहाँ पर आपको नरेशन भी लिखना होगा। नरेशन है आपका द वैल्यू ऑफ गुड्स returned by Sharma wrongly posted to sales and omission of debit to sales return account। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है? प्लीज़ सिर्फ वीडियो मत देखना, प्लीज़ राइट द जर्नल एंट्रीज विद मी। दिस इज द प्रॉब्लम विद अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। व्हेन वी सी द वीडियो, व्हेन वी सी दैट ओके द लेक्चरर और द प्रोफेसर इज राइटिंग द आंसर्स, you will feel okay, you are understanding everything and you will be also able to write the entries, but it will come, the problem will appear when you will sit to solve it। okay, तब problem आएगा। तो it is better to understand now only और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना, ठीक है? नहीं तो फिर प्रॉब्लम होएगा एग्जाम में। चलो, एन अमाउंट ऑफ 15,000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, ओके, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। देखो, मिस्टर फिलिप हैज रिटर्न द गुड्स, सो व्हाट इज द एंट्री आई हैव टू पास? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप। डेबिट टू फिलिप, इट मीन्स in Philip's account I have to write by sales return, that we have learnt in the case of the previous case only। so भाई जब फिलिप का अकाउंट बनाएंगे, फिलिप अकाउंट, यू हैव टू राइट हियर बाय सेल्स रिटर्न इन द क्रेडिट साइड, बट दे आर सेइंग इट हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड, यानी कि यहाँ पर अमाउंट लिख दिया होगा। तो वही गलती की है। तो फिर अगर वही गलती की है, कितने से गलती की है? 15,000 रुपीज से। सी, I had to credit 15,000 in Philip's account, but I have debited 15,000 in Philip's account। अरे करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो अब डबल क्रेडिट करना होगा फिलिप अकाउंट में। बात समझ में आ गई? तो फिर डबल क्रेडिट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टू मिस्टर फिलिप, डबल अमाउंट यानी कि 30,000। अच्छा सर, डेबिट क्या करेंगे? चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन वापस। एन अमाउंट ऑफ 15,000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि जर्नल एंट्री सही है। पोस्टिंग में प्रॉब्लम आई। पोस्टिंग कहाँ कहाँ करोगे? फिलिप के अकाउंट में और सेल्स रिटर्न के अकाउंट में। वो लोग बोल रहे हैं ओनली फिलिप अकाउंट वॉज पोस्टेड लाइक दिस, इट मीन्स वी विल एज्यूम पोस्टिंग इन द सेल्स रिटर्न लेजर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेबिट कर दो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप्स अकाउंट 30,000 30,000। नरेशन क्या लिखोगे? wrongly debit to Mr. Philip। if question mentions to write the narration only, then you have to write। I am writing this green thing just to explain what is happening in the journal entry, okay? to Mr. Philip for goods returned by him, now rectified। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? The third question is a sale of 20,000 made to Mr. Ghanshyam, okay,
was correctly entered in the sales day book. It means journal entry recording the journal entry is absolutely correct, but wrongly posted to the debit of Mr. Radhesham. Oh my god, we sold goods to Ghansham, but we debited Radhesham with 2000 rupees. We had to debit Mr. Ghansham. We have debited whom? We have debited Radhesham. तो भाई सबसे पहले तो ठीक एंट्री क्या होगी? फर्स्ट डेबिट दी घनश्याम. सो मिस्टर घनश्याम, वेलकम टू आर्ट्स. मिस्टर घनश्याम, we had to debit him with how much? 20,000. Then we have given a debit to Radhesham with 2000, that we have to do the reciprocal. So to Mr. Radhesham 2000. How much is left? 18,000. So write here to suspense account 18,000. Simple. This is our journal entry. After that, fourth is bad debts aggregating to 45,000 were written off during the year in the sales ledger. ठीक है, but were not adjusted in the general ledger. Now what we will do? भाई जनरल लेजर में तो हमने लिखा ही नहीं, तो जनरल लेजर में जाके लिख दो. क्या लिखोगे जनरल लेजर में जाके? बैड डेट हो गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट to suspense account. Obviously bad debt will appear in the debtors account and in the general journal also, so suspense account. अरे सब्सिडरी बुक्स में ध्यान दो, सब्सिडरी बुक्स में बैड डेट्स कहाँ पे आता है? जो लास्ट सब्सिडरी बुक होती है, जनरल जर्नल. ओके, सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 45,000. 45,000. If you are getting problem with subsidiary book also, there has been a series already put on our channel regarding subsidiary books. Okay, वहाँ पे we have detailed discussion on subsidiary books. Please go and check. PDF is also attached there. Now, after this, the point number 5th we have is the total of discount allowed column in cash book for the month of September 2018 amounting to 25,000 was not posted. It means posting में गलती आई है. ठीक है, पोस्टिंग में गलती आई है तो डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर रहा होगा डिस्काउंट अकाउंट, वहाँ पे पोस्ट नहीं किया है तो पोस्ट कर देते हैं हम. ये एक्सपेंस है या इनकम है? इट इज एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, सो यू विल राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. कितना डिस्काउंट दिया था भाई? 25,000 एंड 25,000. सिंपल. अरे सिंपल नो. चलो नेक्स्ट. ओके, देयर वर टोटली 5 ओनली. दिस वॉज आर क्वेश्चन फॉर May 2019. आगे बढ़े, चलो भाई चलो. अच्छा, फॉर November 2019 द क्वेश्चन वॉज एग्जैक्टली सेम एज May 2018. देन वी हैव क्वेश्चन फॉर May 2020. चेक. चलो भाई, क्या है क्वेश्चन? The following mistakes were located in the books of concern after its books were closed. अच्छा, and a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed. ठीक है भाई. After its books were closed यानी कि after the preparation of final accounts, trading, P&L, balance sheet, everything they have prepared. Now they have realized that they have done some mistakes. ठीक है भाई. चलो, इसका मतलब क्या है? सर आप इससे हमें क्या बताना चाहते हो? नालायकों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ that we have to use P&L adjustment in place of nominal accounts if there is any error while recording the entry. ठीक है, याद रहेगा फर्स्ट पेज पे जो टेबल सीखा था हम लोगों ने. चलो, पहला पॉइंट बोल रहा है सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 1000. इट मीन्स वॉज, मैंने गलती से सेल्स ज्यादा लिख दिया 1000 से. बात समझ में आ गई? इट मीन्स नाउ वी हैव टू डिक्रीज द सेल्स. इफ वी हैव टू डिक्रीज द सेल्स, what will we write? Sales account debit, but we are writing the entry after preparation of final accounts, so instead of sales account debit we will write, yes, correct, P&L adjustment account debit. P&L adjustment account debit. कितना? 1000 to suspense account 1000. बात समझ में आ गई? आगे चले, देखो
क्या है दूसरा क्वेश्चन? अ सेल ऑफ 5000 to X was wrongly debited to the account of Y. Oh my God, बेचा किसको माल? X को. Wrongly debited to Y. तो फिर we have wrongly debited Y, so we have to credit the Y. तो फिर क्या लिखोगे आप सबसे पहले? Credit the Y to Y account. And we had made sales whom? To X. So क्या लिखोगे? X account debit. अरे भाई देखो, x को माल बेचा था, वी वर सपोज टू राइट x डेबिट टू सेल्स, बट रॉन्गली वी हैव रिटन y डेबिट टू सेल्स. सो टू सेल्स इज करेक्ट, x we had to debit, so x account debit, so y which was debited earlier we will credit it. X account debit to y, how much? 5000. 5000. बात समझ में आ गई? आगे बढ़ू, चलो. जनरल एक्सपेंस 180 was posted in the general ledger as 810. अरे भगवान, क्या लिखना था? 180. वी हैव पोस्टेड इन द जनरल लेजर एज 810. इसका मतलब कितना डिफरेंस है? 810 माइनस 180 इज इक्वल टू 630 रुपीज. बात समझ में आ गई? When you are posting it to the general ledger, what will be the entry you will write? C. It means we have written excess of expense 630 rupees. मतलब our expense was 180 rupees only. By mistake I have written 810 rupees as my expense. So when I have written expense account debit 810, now I have to credit the expense to expense 630, whatever is the extra amount. तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू जनरल एक्सपेंस 630. जैसे ही मैं लिखने गया ना टू जनरल एक्सपेंस 630, एक बच्चे ने कहा सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स नो यू कैन नॉट राइट टू जनरल एक्सपेंस. व्हाट विल यू राइट? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 630. बात समझ में आ गई? डेबिट क्या करोगे? आप सभी का चहीता प्यारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 630. बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन पढ़े, देखो. अ बिल रिसीवेबल फॉर 1550 was passed through bills payable book. Oh my God, the bill was given by P. देखो हम लोग को बिल रिसीवेबल मिला तो वी वर सपोज टू राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P. ओके, बट बाय मिस्टेक वी हैव रिटन P अकाउंट डेबिट. दे हैव सेइंग पास्ड थ्रू बिल्स पेएबल बुक. भाई बिल्स पेएबल बुक में लिख दिया. बात समझ में आई? लिखना था बिल्स रिसीवेबल, लिख दिया बिल्स पेएबल में. इट मीन्स यू कैन से by mistake the correct entry was bills receivable account debit to P, but we have passed मतलब जर्नल एंट्री गलत लिख दी, फर्स्ट स्टेप ही गलत लिख दिया. तो हम लोगों ने गलती से क्या लिख दिया? P अकाउंट डेबिट. बिल्स पेएबल तो यू नो क्रेडिट होता है, बिल्स पेएबल अकाउंट. ठीक है, देखो कितना था? 1550. अमाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो, दिस वॉज आर करेक्ट एंट्री, दिस वॉज आर रॉन्ग एंट्री. ठीक है, पहले रॉन्ग को सही करेंगे, रॉन्ग को सही करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बी. सो वी विल राइट हियर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू P अकाउंट 1550. सिंपल. करेक्ट एंट्री क्या है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P. ये आपकी करेक्ट एंट्री है तो लिखो करेक्ट एंट्री. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है? 1550 टू P's अकाउंट, बट P अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, सो वी विल ऐड 1550 in his account only and the total will become how much? 3100. बात समझ में आ गई? अरे इजी है. नरेशन आप लोग को लिखना है, नरेशन में आप लोग पे छोड़ रहा हूँ. ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख सकते हो. करेक्शन एंट्री और वी आर रेक्टिफाइंग दिस एंट्री व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, जर्नल एंट्री अगर मेंशन किया हो तो लिखना ही है, और अगर नहीं भी मेंशन किया तो ट्राई करना लिखो, मिस मत करना. ठीक है, बिकॉज वी शुड नॉट गिव देम एनी स्पेस टू रिड्यूस आवर मार्क्स. ठीक, चलो अगला क्या है? पॉइंट नंबर 5. Legal expenses of 1190 paid to Mr. Neetu was debited to her personal account. Oh my God, we were not supposed to debit in her personal account. No, we had to debit
लीगल एक्सपेंसेस, अरे बात समझ में आई, वी हैव डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, सो व्हाट विल वी राइट, वी विल क्रेडिट हर पर्सनल अकाउंट. See, this question is one of a kind, okay? So please be very careful. Legal expenses are 1190. तो आपको क्या लिखना था, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू नीतू, बराबर. नाउ कैन आई राइट लीगल एक्सपेंस और शुड आई राइट पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट? वी विल राइट पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिसेस नीतू अकाउंट 11901190. बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ? हाँ सर, आगे बढ़ो सर. आप सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में तो आ ही रहा है. हम लोग प्रिंट आउट लेके सारे आंसर आपके साथ साथ लिख रहे हैं. आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? एकदम पूरा भरोसा है. चलो, पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम अकाउंट. अरे भाई, पैसे किससे मिले? राम से मिले. तो व्हाट विल वी राइट, we will write cash account debit to Ram, बराबर. बट वी हैव डेबिटेड टू श्याम. अरे भाई, डेबिटेड टू श्याम कैसे लिख दोगे? तो फिर आप लोग इसको सही करोगे. कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. देखो, डेबिटेड टू श्याम का मतलब, देखो, वी हैड टू प्रिपेयर राम्स अकाउंट एंड वी वर सपोज टू राइट हियर बाई कैश. ठीक, दे आर सेइंग बाय मिस्टेक वी हैव डेबिटेड टू श्याम अकाउंट ओनली. तो फिर श्याम को क्रेडिट करना पड़ेगा. किस किस को क्रेडिट करना था? पैसे किससे मिले? राम से. तो राम को क्रेडिट करोगे टू राम. श्याम को गलती से डेबिट कर दिया, उसको भी क्रेडिट करना है टू श्याम. दे नेवर सेड देयर इज एनी प्रॉब्लम विद कैश. तो फिर क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000, 1500 एंड 1500. बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े क्या? एकदम आसान है, प्रैक्टिस करते जाना, नहीं तो भूल जाओगे. वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द परचेज बुक. परचेज बुक क्या है? खर्चा. परचेज हमारा खर्चा, नॉमिनल अकाउंट, वी विल यूज पी एंड एल एडजस्टमेंट. वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज टू द नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ 1235 वॉज रिटन एज 1325. अरे भाई, हाउ मच वॉज एक्सपेंस? 1235. आई हैव बाय मिस्टेक इंक्रीज्ड माई एक्सपेंस बाय 90 rupees. So now you have to decrease the expense. To decrease the expense, debit or credit? Credit. So we will write here. टू कौन सा एक्सपेंस था? एक्सपेंस का नाम लिखोगे? परचेज लिख देता हूं. अरे नहीं, परचेज नहीं लिखना. पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना? 90 रुपये, बराबर. डेबिट क्या करूं? डेबिट करूंगा सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 rupees. बात समझ में आई? प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. सिर्फ वीडियो देखने से क्लैरिटी नहीं आएगी. प्रिंट आउट ले लेना, कंजूसी मत करना. मई 2020 हो गया. उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ बनानी थी. इन्होंने क्या कहा है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन. एंट्रीज वी हैव पास्ड, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट फॉर सस्पेंस अकाउंट. तो जहाँ जहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आ रहा है उसका बना देते हैं लेजर. सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट. सो भाई, पहला सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे आया था देखो तो, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1000. तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 1000. बात समझ में आ गई? ऐसे करके ही देखो सारा पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, पिछला था 630 था ना शायद. सस्पेंस, दिस वॉज द डन X2Y. इसमें तो सस्पेंस है ही नहीं. इसमें सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 630. सो सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 630. उसके बाद कहाँ पर है भाई? उसके बाद है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं. सस्पेंस टू राम श्याम 1500 1500. टू राम टू श्याम 1500 1500. then suspense to P and L adjustment, to P and L adjustment 90 rupees. तो इसका टोटल कितना आएगा? 3720. here also total should be 3720. but sir they are not telling. अरे writing बाबा, writing, wait now.
by difference in ट्रायल बैलेंस। इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है सस्पेंस अकाउंट में, याद रखना नालायकों। इसमें जो भी बैलेंस आएगा ऐसे लिखोगे, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस और दिस साइड टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। टू बैलेंस बीटी बाय बैलेंस सीटी ये सब मत लिख देना, गलत हो जाएगा। चले आगे। ओ वाह, लॉटरी लॉटरी। नवंबर 2020 सेम, जून 21 सेम, दिसंबर डन, जून 2022। चलो भाई, क्या दिखाना चाह रहा है ये, देखो। चलो बच्चों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर 31st March वर क्लोज्ड। ओके, वर क्लोज, दिस मीन्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो चुके। विद द डिफरेंस इन बुक्स कैरिड फॉरवर्ड द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली। आंसर आप लोग बता दो, मैं तो सारे बता ही रहा हूँ, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे सर ये रिकॉर्डेड है, हम कैसे बोलेंगे। अच्छा ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स I have goods I am returning, so it is purchase return. It is purchase return. Purchase is my expense, purchase return will be the ulta. Now, return outward book was undercasted by 100 rupees. मतलब मुझे परचेज रिटर्न ज़्यादा लिखना था, मैंने गलती से कम लिखा है, तो वी हैव टू सी इट वॉज अंडरकास्टेड बाय 100, इट मीन्स आई हैव टू ऐड बैक 100 इन इट। सो टू ऐड बैक 100 इन इट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना होगा, तो वी विल राइट हियर टू परचेज रिटर्न। नहीं, परचेज रिटर्न नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे सर, हम लोग लिखेंगे टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, 100 रुपये, 100 रुपीज़। वॉट विल बी डेबिट, हम सबका प्यारा दुलारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो चलो। 1500 being the total of discount column on the credit side of cash book. On the credit side of cash book, what does it mean? Discount has been received, was not posted only. अरे भाई, discount received is our income, so we have to post it. So to post it, discount received, we have to write it. Discount received is income, so we have to credit it. Credit में लिख देता हूँ to discount received, लिख दूँ, अरे लिखूँ या नहीं लिखूँ, लिख दूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड नाम लिखना है या और कोई नाम लिखना है सर? P&L एडजस्टमेंट लिखना है सर। आप क्या बार बार पूछ के हम लोग को कंफ्यूज कर रहे हो। अरे नालायको, तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तुम गलतियां कर दोगे फाइनल में, फिर बोलोगे आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सिंपल। देखो फोकस रखोगे ना ध्यान से, अगर बातें याद रहोगे ना, तो छोटी सी टेबल है जो फर्स्ट पेज पे दी हुई है, अगर वो याद रह गई तो रेक्टिफिकेशन पूरा आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, 6000 being the cost of purchase of office furniture was debited to purchase account. देखो, we were supposed to write furniture account debit to cash. By mistake we have written purchase account debit to cash. ठीक है, तो फिर to cash is correct. We have to write furniture account debit, and this purchase was wrongly debited, so we will credit it. So your entry will be furniture account debit to purchase account. Office furniture account debit to purchase account. करेक्ट, कुछ करेक्ट नहीं है, परचेज अकाउंट लिखना ही नहीं है, क्या लिखोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। फंस गए ना, फंसे ना फंसे, सच्ची बोल सच्ची बोल। नाउ आफ्टर दिस, a credit sale of 760 was wrongly posted as 670. See, क्या बोल रहे हैं लोग? wrongly posted. Posted means there is a problem in the ledger. It is not problem in the journal entry. Okay. Wrongly posted as 670 to the customer account in the sales ledger. इसका मतलब भाई 760 we had to write. By mistake we have written 670. So 90 rupees कम लिखे. देखो, debtor account debit 90 rupees to suspense account 90. Now after this, fifth is the sale of 10,000 was omitted to be recorded. अरे सेल ही नहीं लिखी, ऐसे कैसे?
लिखो भाई लिखो, सेल लिखो। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लिखो सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना है? 10,000। 10,000। बात समझ में आ गई? पक्का? चले आगे। चलो सर, दिसंबर 2022 चेक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोलती पब्लिक? देखो, गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई। देखो यहाँ पे लिखा है विद नरेशन, ठीक है, बोला है विद नरेशन तो नरेशन लिख देने का। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ये नहीं बोला है आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, after preparing the trial balance. It means you can use the suspense account. They have not mentioned after preparing the final account. It means it is after trial balance before final accounts. बरोबर? ठीक है, देखो 35,000 paid for purchase of air conditioner, ठीक है, for the personal use of proprietor debited to machinery account. We have discussed this in detail in our series number 2C. जब भी personal use आता है, ठीक है, whenever there is personal use you will write drawings account debit, understood? But here they are saying you have debited to machine account, so it is wrong. You had to debit which account? Drawings account. So you will write here drawings account debit to machinery account, because machinery was wrongly debited. Machinery account you will write here 35,000। 35,000। सर आप हमारे लिए नरेशन लिख दो ना प्लीज। ठीक है, लिख देता हूं। करेक्शन ऑफ wrong debit to machinery account for purchase of air conditioner for personal use। बरोबर छे? चलो, राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ, बताना मत, ठीक है। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, वी सोल्ड द गुड्स, कस्टमर हैज रिटर्न द गुड्स, तो इट इज सेल्स रिटर्न फॉर 5,000। द सेम हैव बीन टेकन इनटू द स्टॉक। अच्छा, स्टॉक में तो ले लिया, बट नो एंट्री वॉज पास्ड। अरे वेरी वेरी सिंपल, सी सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री तो लिखनी है। यू नो दिस बेटर देन मी, टेल मी। सेल्स रिटर्न account debit to, have they given the name for debtor? Have they given Ram, Sham, Hari, anything? Nothing is given, so you can write here to debtors account। कितना लिखोगे? 5,000। 5,000 सिंपल। नरेशन लिखो, नरेशन फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट लिखो। सर इसका नरेशन हम खुद लिखेंगे। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए नरेशन। कैसी बातें कर दी। करेक्शन ऑफ ओमिशन to record return of goods by customer, ठीक है। आगे लिखो। हाँ सर, आगे लिखो। थर्ड क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ 4,500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम के हम लोग को पैसे मिले। कितने पैसे मिले? 4,500। वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। अरे यार, किसके पैसे मिले? इंटरेस्ट के। तो इंटरेस्ट में लिखो why have you credited commission? You have wrongly credited commission, debit it again, so commission will be debited again, commission account debit, and you will credit which account? Interest account। Interest account you can write your interest received account. How much? 4,500। 4,500, so you will write the narration correcting wrong entry of interest received into commission account। अरे वॉट एवर यू आर राइटिंग नो इन जर्नल एंट्री, बस उसी को लिखना है स्टेटमेंट में। डू नॉट ओवर यूज योर ब्रेन इन दिस नरेशन, ओके। चलो, आफ्टर दिस फोर्थ इज a sale of 2760 was posted from sales book to the debit of Mercedes Sobha Traders at 2670। अच्छा देखो, we had to put it in the debit of Mercedes Sobha, that is correct. Amount is wrong. Amount is how much? 2660, 2670। Original amount was 2760, मतलब एक्स्ट्रा लिखना था, हम लोगों ने कम लिख दिया। सेल थी कितने की? 2760 की, हमने लिखा कितना है? 2670। It means see 2760 is here, we had written 2670, so we have to increase the
amount by 90 rupees in Sobha Traders. So you will write here Mercis Sobha Traders account debit 90 to which account? Tell me which account now. Have they said that there has been any problem with sales account? Nothing. It means it is to suspense account. बात समझ में आ गई? सर इसका नरेशन तो हम खुद ही लिख लेंगे. नहीं बेटा, तुम लोग मेरे साथ साथ बताओ क्या लिखूं. सर आप लिखो, हम बताते हैं. हाँ बोलो ना. लिखो बीइंग क्रेडिट सेल ऑफ 2760 posted as 2670, that is debiting Mercis Sobha Traders account less by 90, now rectified. क्या बात, तुम लोग तो नरेशन लिखना बहुत जल्दी सीख गए. हाँ सर, हम तो है ही होशियार. क्या बात. चलो देखो, अनिरुद्ध से कुछ बातें करते. जून 23, ये हमारा अटेम्प्ट. देखते हैं इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है. चलो भाई देखो. Anirudh was unable to agree the trial balance. Obviously, we are chartered. No, we will tally for him. And wrote off the difference to the profit and loss account of that year. Okay. On verifying the old books by a chartered accountant next year, we are only the chartered. The following mistakes were found. Okay. Now we have to correct those mistakes. Obviously, we have taken birth to correct the mistakes only. No. Yes, sir. You are saying absolutely correct, sir. But why our parents are not thinking the same? They will take time to understand, no, your excellence. Now, check. Purchase account was undercasted by 16,000. Understand one thing. This is, we are preparing after the final accounts have been prepared. Of the last year, obviously it is prepared. You have to use P&L adjustment account everywhere. Please remember. Purchase account was undercasted by 16,000. Now you have to add 16,000 back. So purchase account should be debited to suspense. So you will write purchase account debit to suspense or anything else. Sir, P&L adjustment account debit to suspense account. 16,000 बराबर. नरेशन लिखे. हाँ सर लिख दो नरेशन प्लीज सर. ठीक है. परचेज अकाउंट अंडर cast in the previous year, error now rectified. याद रहे जो भी आंसर्स हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये सब ICI ने दिए हैं. ये सब उन्हीं की RTPs के क्वेश्चन है. सारे आंसर्स भी उन्हीं की RTP में दिए हुए हैं. ठीक है. चलो उसके बाद क्या है. सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम for 5,000 was omitted to be recorded. Arey, omission is the best. You know why? Because omission means they have not written anything. So we don't have to correct anything. Just we have to write the entry. Okay. So sale of goods to Rahim 5,000. So लिखो सीधा सीधा sale of goods. Rahim account debit. Rahim account debit to sales. यहीं पे प्रॉब्लम आता है. यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. सेल्स नहीं लिखना है, याद रखना. P&L एडजस्टमेंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कितना लिखोगे. 5,000. प्लीज़ प्लीज़ P&L एडजस्टमेंट की हैबिट डाल लो लिखने की, नहीं तो गलती हो जाएगी. फालतू में मार्क्स कट जाएंगे. आगे बढ़े. क्या है पॉइंट नंबर 3. रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभव 1200. अरे भाई पैसे मिले किससे. अशोक से. तो फिर क्रेडिट अशोक को करना था. यू हैव पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनुभव. सो व्हाट विल यू राइट. सी व्हेन यू रिसीव्ड कैश फ्रॉम अशोक व्हाट विल यू राइट. कैश टू अशोक. बाय मिस्टेक यू हैव रिटन कैश टू अनुभव. सो डेबिट द अनुभव बैक. अनुभव डेबिट टू अशोक. अनुभव अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट 1,200. 1,000. सर आप नरेशन लिखना भूल गए या हमारे लिए छोड़ा है सर. नहीं बेटा लिखना भूल गया. वापस लिख देता हूँ. सेल्स टू रहीम omitted
लास्ट ईयर नाउ एडजस्टेड। सर रेक्टिफाइड लिखना था, नालायक, रेक्टिफाई गलती को की जाती है, गलत तो लिखा ही नहीं, समझे। चलो अनुभव टू अशोक में क्या लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अशोक wrongly posted to the account of अनुभव। ये गलती थी ना, तो लिखो यहाँ पे नाउ रेक्टिफाइड। सर इसके क्या मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, नाउ एडजस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई आई हैव रिटन देयर एडजस्टेड एंड नॉट रेक्टिफाइड। ओके नाउ आफ्टर दिस फोर्थ क्या बोल रहा है भाई, देखो अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल्स वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 4617। अरे भाई सेल ही तो लिखनी थी, कितने की थी 400, 167 सेल्स वॉज रॉन्गली पोस्टेड। अच्छा देखो सेल वॉज 4167, आई हैव रॉन्गली रिटन एज 4617, तो मैंने सेल ज़्यादा लिख दी। आई हैव रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा इनकम ऑफ हाउ मच 4617 माइनस 4167 दैट इज 450 रुपीज़। तो मैंने सेल्स ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली, कितने से 450 रुपीज़ से। ब्रिंग योर सेल बैक, सो यू विल राइट हियर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सो लिखो यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सर आपका सेल्स तो दिख ही नहीं रहा। हाँ मैंने लिखा ही नहीं, तो दिखेगा कैसे, क्यों सर आप क्या मैजिक दिखाओगे, नालायक। सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखना है, क्या लिखोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। 2 बार लिख दिया क्या, अरे हटा रहा हूँ चिल्लाओ मत। चलो नरेशन बताओ क्या लिखे। सर आप लिखो एक्सेस पोस्टिंग टू सेल्स अकाउंट लास्ट ईयर 4617 इंस्टेड ऑफ 4167 नाउ एडजस्टेड। बात समझ में आ गई, आसान एकदम। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं। चलो तुम लोग बताओ फिफ्थ पॉइंट का आंसर क्या, बताओ फटाफट। पहले तुम बताओगे या पहले मैं बताऊंगा। रिपेयर्स टू मशीन वॉज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 6100। यू वर नॉट सपोज टू डेबिट द मशीन अकाउंट, यू वर सपोज टू डेबिट द रिपेयर्स अकाउंट, ठीक है। और कितने से डेबिट करना है रिपेयर को 4617। देखो यू हैड टू राइट रिपेयर्स टू कैश, यू हैव रिटन मशीन टू कैश, टू कैश इज करेक्ट। डेबिट द रिपेयर्स एंड द मशीन यू हैव डेबिटेड यू हैव टू क्रेडिटेड, सो रिपेयर्स टू मशीन। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा एरर है बताओ ना, बताओ ये कौन सा एरर है, जो बताएगा उसको गिफ्ट भेजूंगा, कमेंट करो। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना था 6100, 6100। नरेशन लिख दूँ, कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती है तो बता दो, मैंने अगर कोई गलती की है तो। मैं नरेशन लिख रहा हूँ तब तक मुझे बता देना, ठीक है। रिपेयर्स टू मशीनरी वॉज wrongly debited to machinery account now rectified। अरे भाई कोई गलती है क्या इसमें, हाँ सर गलती तो है, क्या गलती है सर, रिपेयर एक्सपेंस था। हाँ एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते तो फिर हम लिखते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ओ ठीक है सॉरी आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ो, चलो आप हमें लल्लू समझते हो, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। ओके। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर 3000 एंटर्ड एज अ सेल। अरे भाई परचेज किया था पॉल से, आपने गलती से क्या लिख दिया, आपने गलती से लिख दिया सेल, तो फिर इसको कैसे ठीक करोगे। देखो आपको लिखना था परचेज डेबिट टू पॉल, आपने लिख दिया पॉल डेबिट टू सेल, ये परचेज है, ठीक है। परचेज लिखना था परचेज टू पॉल, आपने लिख दिया पॉल टू सेल। बात समझ में आई, तो पहले पॉल टू सेल को ठीक करो, क्या लिखोगे सेल टू पॉल, फिर लिखना परचेज टू पॉल। चलो भाई लिखते हैं, पहले लिख देते हैं सेल अकाउंट
डेबिट टू पॉल। उसके बाद कितना था अमाउंट? 3000, 3000। और फिर क्या लिखना था? परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू पॉल। पॉल में 3000 और ऐड कर देता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? सर टोटल हो जाएगा 6000। ओके, 6000 इन पॉल्स अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा 3000। ये सही है ना? एकदम बराबर, कोई डाउट तो नहीं है? श्योर। देखो क्या गलती की हमने इसमें, ये लिखना ही नहीं था, ये भी गलत है। क्या लिखोगे आप? क्योंकि सेल और परचेज दोनों क्या है सर? दोनों ही पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना था। हाँ, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पॉल 6000। सर ऊपर वाली लाइन मिट गई, थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे क्या? लिखते थे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। चलो इसका नरेशन क्या लिखोगे? इसका नरेशन लिखोगे क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉल सेल लास्ट ईयर नाउ रेक्टिफाइड। चलो आगे बढ़े। ये आपके 6 पॉइंट थे। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद इन्होंने कहा है कि आपको 2 अकाउंट और बनाने थे। कहाँ गए वो अकाउंट? पी एंड एल एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट। देखो जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोग को लिखवा दी, पोस्टिंग आप खुद कर लोगे क्या? नहीं सर, आप हमें छोड़ के मत जाओ, हम साथ साथ करेंगे। मगर नालायक को मैं लिखता हूँ, तुम लोग तो लिखते ही नहीं। सर हम लिखते हैं, आप आके चेक कर लो। नालायक कहेंगे। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट सबसे पहले क्या लिखा है? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 16000। चलो लिखो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अकाउंट 16000। और सस्पेंस में क्या लिखोगे? बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 16000। बात समझ में आ गई? चलो भाई उसके बाद क्या है? रहीम टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 5000 रुपीज़। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट में जाके लिखो बाय रहीम 5000। लिखो लिखो लिखो, मेरा वेट मत करो। बाय रहीम 5000। मैं सिर्फ लेजर की पोस्टिंग करनी है, इसमें कुछ नहीं करना। यू शुड नॉट नीड माई हेल्प इन दिस। आफ्टर दिस अनुभव टू अशोक में तो पी एंड एल एडजस्टमेंट भी नहीं है, सेल्स सस्पेंस भी नहीं है, तो ये हमारी किसी काम की नहीं। पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450। लिखो भाई लिखो, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 450। सस्पेंस में बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट 450। ठीक है, आगे बढ़े? बढ़ो सर बढ़ो। उसके बाद क्या है? कहाँ गया? 450 हो गया। फिर क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी 6100। तो लिख दो यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू मशीनरी 6100। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? चलो उसके बाद क्या है? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पॉल 6000। पी एल एंड एडजस्टमेंट टू पॉल 6000। तो इसका टोटल कितना आया भाई? सर इसका टोटल आया 28550, 28550। सो यू विल राइट हियर बाय। अच्छा, पी एंड एल एडजस्टमेंट में जहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा यू विल राइट द ओनर्स नेम, इज कैपिटल अकाउंट। ओके, अनिरुद्ध कैपिटल 23550। एंड इन सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो यू विल राइट हियर टू अनिरुद्ध कैपिटल 16450। सर एक बात पूछनी थी आपसे, बोलो। आपने जब पहले सस्पेंस अकाउंट बनवाया था, आपने वहाँ पे लिखवाया था बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और तब आपने कहा था यू हैव टू राइट डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ओनली। नाउ यू आर राइटिंग अनिरुद्ध कैपिटल। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, देयर वी प्रिपेयर्ड सस्पेंस अकाउंट व्हेन वी हैड कंप्लीटेड ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। हियर फाइनल अकाउंट हैज बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, तो एवरीथिंग विल बी ट्रांसफर टू अनिरुद्ध कैपिटल ओनली। बात समझ में आ गई? श्योर। दिस वॉज आर last question of June 2023 RTP, and by this we complete our rectification of errors. All the questions of all the past
RTPs from ICI. Okay, thank you so much.